जब यहाँ पर हम इकट्ठे हुए परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर को प्रशंसा और आराधना करने के लिए, तो इस समय आइए हम शुरुआत की प्रार्थना में जाएंगे। প্রভু যীশু খ্রিস্ট সারা জীবন ধরে মানুষের সেবা করে গিয়েছেন। তিনি আমাদের সহনশীলতা, প্রেম, শান্তি এবং ক্ষমার মহান দর্শন শিখিয়েছেন। ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রিস্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রিস্টের মতো মহামানব এই পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে নতুন প্রাণ দেওয়ার জন্য। বহু দৃষ্টিহীন, বিশেষভাবে সক্ষম, অসহায় মানুষ প্রভু যীশুর অলৌকিক ক্ষমতার জন্য ভালো হয়ে গিয়েছেন। প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের শিখিয়েছেন, যিনি নম্র তিনি এই পৃথিবীর দখল নেবেন। দিন দরিদ্র, অসহায়, অনগ্রসরদের পাশে দাঁড়ানো মানে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো। প্রভু যীশু খ্রিস্ট এই বার্তাই দিয়ে গিয়েছেন আমাদের। সারা জীবন ধরে মানুষের সেবা করে গিয়েছেন যীশু খ্রিস্ট। প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের শিখিয়েছেন, তুমি তোমার শত্রুকেও ভালোবাসো। যীশু খ্রিস্ট আমাদের ক্ষমা, সহনশীলতার মহান শিক্ষা দিয়েছেন। প্রভু যীশু খ্রিস্টের দর্শন এবং পবিত্র বাইবেল আমাদের সবসময় আলোর পথ দেখায়। প্রাক বড়দিনের এক অনুষ্ঠানের সোমবার 16ই ডিসেম্বর এইসব বার্তা সকলের সামনে মেলে ধরলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং খ্রিস্ট অনুরাগী ডক্টর সুভাষ স্যামুয়েল। প্রভু যীশু খ্রিস্টের জীবন দর্শন গ্রহণ করে বহু বছর ধরে বহু মানুষকে আলোর পথ দেখিয়েছেন সুভাষবাবু। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়েও তিনি ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রিস্টের মহিমা প্রচার করেছেন। সোমবার শিলিগুড়ি শালবাড়ির কাজিমান প্রধান রোডে বেথেল চার্চ অ্যাসোসিয়েশন প্রাক বড়দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করে। সেখানে যীশু খ্রিস্টের আবির্ভাব, তাঁর জীবন দর্শন নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য মেলে ধরেন সুভাষবাবু। ঈশ্বরপুত্র যীশু খ্রিস্ট কেন এসেছিলেন এই পৃথিবীতে? বড়দিন মানে শুধু কেক খাওয়া, ক্রিসমাস ট্রি আর আলো দিয়ে সব সাজিয়ে তোলা নয়। ক্রিসমাস মানে প্রভু যীশুর দর্শনকে অনুসরণ করা। ক্রিসমাস মানে নিজেদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসা এবং দরিদ্র অসহায় মানুষের জন্য সেবা করার ব্রত গ্রহণ করা। এদিন সেখানে রেভারেন্ড ওয়ালিং এর প্রার্থনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিভিন্ন গির্জার যাজক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এনোসিমিজের ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। প্রভু যীশু খ্রিস্টের ওপর সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক দিয়ে অনুষ্ঠান ভিন্ন মাত্রা পায়। বেথেল ইনস্টিটিউট অফ থিওলজিক্যাল স্টাডিজ এবং এরাইজের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী সেখানে তাদের শিল্পকলা মেলে ধরে বড়দিনের ওপর। বেথেল চার্চ অ্যাসোসিয়েশন এবং বেথেল ইনস্টিটিউট অফ থিওলজিক্যাল স্টাডিজের চেয়ারম্যান তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সদীপ্ত স্যামুয়েল সেখানে প্রাক বড়দিনের কেক কেটে সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তার সঙ্গে সমাজসেবী প্রেমলতা স্যামুয়েলও সেখানে বক্তব্য মেলে ধরেন সকলের মঙ্গলের জন্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন পাস্টর থমাস এবং রিমি রজক। অনুষ্ঠান শেষে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। जय मसीह की, विश यू हैप्पी क्रिसमस। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां प्री क्रिसमस प्रोग्राम के लिए। वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू। कितनी सुंदरता से आप बैठे हैं, कितनी सुंदरता से आप सब प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। सिर्फ किसके लिए? क्रिसमस ट्री के लिए, क्रिसमस केक के लिए, अपने आप के लिए नहीं। कितना सुंदर रिमी ने बताया, जीसस क्राइस्ट के लिए। हालेलुया। सो यीशु से अच्छा हमारे और आपके लिए कोई और है ही नहीं। हम और आप परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हैं। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे दिलों में किस तरह डाला? पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमारा हृदय आनंद से भर गया। लिखा बाइबल में कि मरियम बड़े आनंद से गाने लगी और कहने लगी, हे मेरे प्राण यहोवा की बड़ाई कर, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। क्या आप इस दिन में ये कह सकें कि परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने सारी दुनियावी बातों से मुझको और आपको बचाया है और मेरा और आपका उद्धार किया। दाऊद ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसने तो मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला, चट्टान पर खड़ा किया, मेरे मुंह में स्तुति का गाना दिया, जो परमेश्वर की महिमा के लिए है। यदि आप आज गाते हैं, स्तुति करते हैं, सो परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। सो मरियम बड़े आनंद के साथ ये गीत गाने लगी, यहोवा का धन्यवाद करो। वो उसकी स्तुति करने लगी आत्मा से भरकर परमेश्वर की। देखिए, ये यीशु मसीह
न केवल अलौकिक रूप से पैदा हुआ, वो इस धरती पर रहा, वो बड़ा हुआ और करीबन 33.5 वर्ष तक वो इस धरती के ऊपर रहा। 3.5 वर्ष तक की उसकी सेवा रही और इस सेवा को भी उसने अंजाम दिया। उसने कहा मैं आया हूं ताकि परमेश्वर के इच्छा को पूरा करूं। जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर था, उसने अनेक आश्चर्यजनक काम किए, अद्भुत अलौकिक काम जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह के समान इस धरती पर ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। ये चैलेंज के साथ है, इसलिए कि जिस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होता है, जब वो बाइबल पढ़ने लगता है, उसकी आत्मिक समझ खुल जाती है, तब वो महसूस करता और इस बात को जान लेता है यीशु से अच्छा व्यक्ति इस धरती पर और कोई हो ही नहीं सकता। तो उसने वचन प्रचार किया, उसने गवाही दी और अनेक आश्चर्यजनक काम किए और मैं और आप उन आश्चर्य कर्मों को अच्छी प्रकार जानते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा आरंभ की, वो जाकर एक विवाह में बैठा और विवाह में बैठते ही उसने पानी को द्राक्षरस बना। आगे बढ़े तो यीशु मसीह ने कितने अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरों को चंगा किया। उसने आवाज दी और लोग बोलने लगे, उसने आवाज दी, लोग सुनने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो कुछ यीशु मसीह ने किया और उसने सब कुछ अच्छा और भला किया, ऐसा बाइबल बताती है। केवल यही नहीं कि उसने अच्छे आश्चर्यजनक काम ही किए, उसके मुंह से अनेक अच्छी शिक्षाएं भी निकली। उसने कहा धन्य वो है जो मन के दीन, स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। उसने कहा धन्य वो है जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। उसने कहा धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। उसने कहा धन्य वो है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो परमेश्वर की ओर से तृप्त किए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, एक नहीं यीशु मसीह ने कई एक उदाहरण दिए और सबसे सुंदर बात, यदि इस दुनिया में कोई देने वाला था तो वो प्रभु यीशु मसीह था, जिसने कहा अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए बुराई से ना हारो, लेकिन भलाई से बुराई को जीतो। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो तुम भी उनके साथ हम सब ये चाहते हैं कि हमारे साथ सब लोग अच्छा व्यवहार करें, तो पहल किसको करनी है? हमको करनी है। यदि हम पहली पहल शुरू करेंगे अच्छा करने के लिए, तो दूसरे लोग भी अच्छे हो जाएंगे और यही प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अच्छी शिक्षाएं दी, उसके मुंह से बुद्धि की बातें निकलती थी। यहाँ तक कि जब लोग उसके वचन को सुनते थे तो ये कहते थे इसको इतना बुद्धि और ये ज्ञान की बातें कहाँ से मिली। जब सिपाहियों को पकड़ने के लिए फरीसियों ने भेजा तो उन्होंने आकर जवाब दिया, कभी किसी ने ऐसी बातें नहीं कही। जो कुछ यीशु मसीह के मुख से निकला वो जीवनदायक था और ऐसा जीवन था। उसने कहा मैंने जो बातें तुमसे कही वो आत्मा है और जीवन भी। जीवन और आत्मा की बातें, सामर्थ से भरी हुई बातें प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर देकर गया। और मैं आपको आखिर में इतना बताऊंगा, यीशु से जैसा कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं हुआ। कारण क्या है? आपको मालूम है, अनगिनत पुस्तकें यीशु के नाम से लिखी और आज भी सबसे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज यदि हैं दुनिया के अंदर तो यीशु मसीह के नाम से है। बड़े बड़े चर्चेज आज दुनिया के अंदर हैं सो यीशु मसीह के लिए हैं, सिर्फ यीशु के कारण। और यदि आप कुलुसियों की पत्री पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पौलुस ने कहा वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलूता है। स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, देखी हो, अनदेखी हो, सब कुछ यीशु के कारण है। सबको एडवांस हैप्पी क्रिसमस। प्रभु का बहुत धन्यवाद है और आभारी है।
yet again another Christmas. और मैं बैठकर याद कर रहा था उन शुरुआती दिनों को पिंकी मैम, जब हम यहाँ पर आए थे और क्रिसमस अकेले मनाते थे। और आज ऑलमोस्ट आई थिंक 16 years and more, 16 साल के ऊपर हो गया, एंड वी सी कि बेतेल जिसकी शुरुआत बहुत ही छोटी सी आती, शुरुआती दिनों में सिर्फ पास्टर पैट्रिक अंकल, एक बार खड़े हो जाए, वो एक सीनियर है काफी स्टार्टिंग से, शुरुआती दिनों से थे। और उनके बाद दूसरे सीनियर यहाँ पर कोटी खींचे अल्फ्रेड भाई, 1 साल के बाद विद्यार्थी की तरह, स्टूडेंट की तरह आए थे। सुमित भाई लोग भी बाद में आए थे, लेकिन बस हम्बल शुरुआत थी प्रभु के अनुग्रह में बेतेल की, और थोड़े से लोग, 2-3 लोग, और उसी में छोटी सी सेवा चलना करती थी। आज हम प्रभु के धन्यवादित है कि वो काम सिर्फ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से बढ़ जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर तक चला गया। और प्रभु के धन्यवादित है आप सबके, क्योंकि ये जो फैलाव हुआ, ये जो बढ़ना हुआ, ये बिना परमेश्वर के अनुग्रह के नहीं होता। और उसके साथ साथ जैसा बाइबल बताते कि यीशु मसीह भी मनुष्य का अनुग्रह में बढ़ता है, वैसा बेतेल की सेवा भी आपकी सहायता से बढ़ती है। और इसलिए हम आप सबके धन्यवादित है। और हम चाहते थे कि क्रिसमस का ये प्रोग्राम स्पेशल हो, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं हो, हम अपने घर में ना मनाए, लेकिन आप सबके साथ एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ बेतेल के साथ हम मना सके। सो वी आर हैप्पी वी हैव जॉइंड विथ यू, द एमडिव स्टूडेंट्स, द बीटीएच स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन वाले बीटीएच के स्टूडेंट्स, बेतेल के डिफरेंट प्रोग्राम में सब काम करने वाले हम सब आभारी धन्यवादित है। बहुत सारे लोग बिकॉज क्रिसमस सीजन है, टाइम है, नहीं आ पाए, लेकिन अब प्रभु के धन्यवादित है आप सबके सहयोग के। और ये क्रिसमस हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। सो हम आप सबके बड़े आभारी धन्यवादित है। दिस इज टाइम टू कट द केक। With happy faces, we would like to say, okay, once again, thank you so much for, and we would like to thank you, brother here, बापी, धन्यवाद आपको, बापी भाई को, कि वो मीडिया से आए हुए हैं, what brother? खबर घंटा से आए हैं, तो big round of applause for our media. हमारा चेयरमैन साहब ने मुझे एक अनुमति दिया है कि अगर आप बहुत सारी आप पासवान लोग हैं, आप इंटरव्यू आप ले सकते हैं, तो आप प्रार्थना में जाने का। तो मैं निवेदन करूंगी हमारी डायरेक्टर मैम प्रेमलता सांगल, वो हमारे सामने आएंगी और हमारे क्लोजिंग प्रेयर में हमें अगुवाई करेंगी। हैप्पी क्रिसमस इन एडवांस। परमेश्वर आप सभी को धन्यवाद देती हूँ जो भी यहाँ पर हमारे साथ आए एज अ फैमिली टू सेलिब्रेट द क्रिसमस एंड दिस एंटायर ईयर। पूरा साल परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा है, हमारे कामों में, हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे बच्चों के पढ़ाई में, कॉलेजेस में, हर एरिया में परमेश्वर ने हमारे साथ थे एंड ही प्रोटेक्टेड एंड ही हैज गाइडेड अस एंड वी नो दैट फॉर श्योर that this world belongs to God and He will take care of God in everything. So let's pray. So हम लोग क्या करेंगे, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हुए let's all thank God because अगर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे तो फिर हमारा लाइफ तो अधूरा हो जाएगा. So let's just thank God for His protection, for His guidance, for His love, grace and mercy. So as a Bethel Church, let's pray and let's all together. हम दोनों हाथ बंद करके परमेश्वर की ओर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद कि आपने हमें पूरा साल आपने हमें संभाला, रखा, सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, और हर चीज से आपने हमें सहायता किया, मदद किया पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते लॉर्ड। इस पिछले साल में लॉर्ड कितने लोग अपनी जान गंवा दिया लॉर्ड, लेकिन आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है लॉर्ड। इसलिए हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। जब भी हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में, हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे जीवन में जो भी कमी कटी हुई पिता परमेश्वर, लेकिन आप वहाँ थे और आपने हमें सहायता किया।
हमारे सारे चीजों से अपने मदद दिया लॉर्ड, इसलिए लॉर्ड हम दिल से मन से हर चीज से पिता परमेश्वर इस समय एज अ फैमिली ऑफ बेथल चर्च ऑफ सिलीगुड़ी लॉर्ड वी वांट टू से वी लव यू एंड वी थैंक यू फादर and we believe God that the coming year also Lord you will take care of us Lord, you will hold us Lord, because you will never let your children to be ashamed but you will uplift your children in front of everybody Lord, that through our life God your name will be glorified O God. Lord bless us with more of your wisdom, your knowledge, your strength, that we can do the things that you want us to do Lord. आपने जो हमारे लिए योजना रखा है, आपने जो हमारे लिए इच्छा रखा है पिता परमेश्वर, उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिता सके लॉर्ड, हमें सहायता करिए लॉर्ड। हमारे दिल में सिर्फ आप हो सकते पिता परमेश्वर और कोई नहीं लॉर्ड। अगर हमसे कोई भी गलती हुई है अनजाने में, knowingly or unknowingly, anything we have done wrong Lord, we ask you to forgive us God, but help us Lord that we should always abide in your presence Lord. Please God be with us and guide us God, giving you all the glory, honor and praises. We ask this prayer in Jesus holy mighty name. Amen. हम सब आशीष के लिए पिता हमारे लिए आशीष खुशी के कारण बनने के लिए हमें सहभागी होने के लिए सहायता किया।